ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے سینئر سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومتی جماعت ہو پاکستان پیپلز پارٹی، فضل الرحمان گروپ یا MQM، تمام جماعتوں کا یہی نظریہ بھی ہے اور کوشش ہے کہ یہ موجودہ بجٹ 2025-26 عوامی ہونا چاہیے، اور حکومتی جہاں پر دعویٰ ہے کہ یہ معاشی اشاریے اس سال بہتر ہو چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اسی مطابق عوام دوست بجٹ کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال پیپلز پارٹی کا PSDP اور ٹیکسز سے ریلیٹڈ جو تحفظات تھے اس دفعہ بھی وہی ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کی جانب کوششیں جاری ہیں۔ دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ بجٹ سے ریلیٹڈ جو تحفظات ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی سے متعلقہ ہیں، پچھلے بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے بھرپور زور لگایا اپنے منشور کے مطابق، PSDP ہو دوسری چیزیں ہوں، اور ایک طرح سے ٹف ٹائم بھی دیا کہ یہ عوام کے حق میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس دفعہ کیا تجاویز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، عموماً تو یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے، لیکن ہماری اپوزیشن قیدی نمبر 804 کے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ رہی۔ وہ ان کا رائٹ ہے، ان کا لیڈر ہے، ہر کوئی اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے، لیکن ایشوز پر نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کلیئر ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم اس ملک کو استحکام دینے کے لیے، اسٹیبلٹی دینے کے لیے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اصولوں پر اپنے سودے بازی کریں، اور اس لیے پیپلز پارٹی سچ بولتی ہے اور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایشوز کے اوپر ہم نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں، اور جو الٹے سیدھے قانون یہ کبھی کبھی لے کے آتے ہیں ان کو ہم ٹیمپر ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی بجٹ میں آپ دو بہت ریگریسو لاز حکومت لے کے آئی ٹیکسیشن کے اوپر، ہمارے ابھی بھی بحث، کل بھی ہمارا فائنانس کمیٹی میں اس پہ بحث ہے، اور پیپلز پارٹی ایک ریفارم ایجنڈا بھی انٹرنلی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ فار انسٹنس اس وقت کل ایک بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پارلیمان میں ایک بجٹ آفس بنائیں گے نوید قمر صاحب، اپنی ہی از دا چیئرپرسن آف آر فائنانس کمیٹی۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اس کے، کیونکہ اس میں پارلیمنٹیرینس کو ایک اسٹرینتھ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے لوور ہاؤس میں کمیٹی میں بجٹ فائنانس بل نہیں جاتا تھا، وہ فائنانس بل جائے گا تو اس کو چینجز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، تو کمیٹی کو انہوں نے امپاور کیا۔ یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے سہرے پہ جاتی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی جو ریگریسو لاز آئیں گی یا ایسا ٹیکس سسٹم آئے گا جو عوام کے اور بھی کمر توڑے، تو اس پر یقیناً پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی۔ جا رہا ہے کہ معاشی اشاریے پچھلے سال کی نسبت بہتر ہو گئے ہیں، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ بجٹ بھی بہتر ہوگا عوام؟ دیکھیں، تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا بھی رہے ہیں اور بہتر ہو بھی رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اور اسی طرح بجلی کے بلوں میں جب کمی آئی ہے، یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں ہمارے پچھلے بجٹ کو، جس میں کچھ سخت فیصلے لیے گئے تھے، اور انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے اور اس سے آنے والے بجٹ جو ہیں وہ ایک بہتری کے بجٹ ہوں گے، جس میں ایک عام بندے کو ریلیف مل سکے، آپ کی جو صارفین ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ تو انشاءاللہ دس بجٹ ول بی پیپلز فرینڈلی بجٹ۔ اس میں ایون دو کہ ہمیں ایک IMF کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے چیزوں کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم پورا بھی کریں گے اور لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے۔ کہ پچھلے بجٹ میں بھی ظاہری بات ہے آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، اس کے بعد بجٹ پیش ہوا، آپ نے حمایت بھی کی۔ اس بجٹ میں عوامی جو فلاح کے لیے کیا کچھ آپ کی جماعت جو ہے اس نے تجاویز پیش کی ہیں، اور یہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بجٹ ہمیشہ جب آتا ہے تو ایک فائنینشیل ایئر، ایک خاکہ دیا جاتا ہے، اور پیسے مختلف ہیڈز میں مختص کیے جاتے ہیں کہ جو اخراجات کر کے منسٹریز ہیں اور ڈیفرنٹ عوام کے رفاہ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ظاہر ہے عوامی نمائندے ہیں، اور ہر ایک پارٹی کا مینیفیسٹو بھی یہ ہے کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں تو عوام کے لیے ہم کچھ کوشش کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جب بجٹ آتا ہے تو ہمیشہ مہنگائی آتی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بجٹ آیا اور اسے کوئی سستائی یا کوئی ڈائریکٹ ریلیف عوام کو ملتا ہے۔ یہ ایک یوزول ایک اس طرح ایک سسٹم آپ کہتے ہیں کہ اس میزانیے کا بن گیا ہے۔ ہم اپوزیشن میں رہیں یا پھر گورنمنٹ میں، تو ہماری جماعت نے ہمیشہ سجیشنز دی ہیں، خاص کر جو ٹیکس کے حوالے سے ہے، کہ جو آپ کا سیلریڈ کلاس ہے یا جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے اس میں مسلسل بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے تاکہ
ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टैक्स नेट पे आए और टैक्स का बोझ हर एक के लिए एक इक्वल हो जाए। ये ना कि अगर आप GST भी लगा दें, FED भी लगा दें, फिर जब आप कोई अपनी ज़रूरत के लिए एक घर का एक घरौंदा बनाते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, उस पे भी आप फिर 7E जैसा एक कदगन लगा देते हैं, तो फिर ये गरीब आवाम किधर जाएंगे। एक मीडियोकर जो है इस वक्त उसका तसव्वुर नहीं है, मीडियोकर बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि इज़्ज़त नफ्स भी लोगों की होती है। आप बेनज़ीर इनकम देते हैं, एहसास प्रोग्राम देते हैं गरीबों को, वो मैं समझती हूँ हमने जो मेन सजेशन एक ये भी दिया है कि आप इतने बिलियन ऑफ रुपीस जो पीस मील में देते हैं उससे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वो बना दे, यूनिट बना दे। आज का नौजवान बेरोज़गार है, वो अपने रोज़गार के लिए ख़ुद कोशिश करेगा। आप ये 10,000, 20,000, 3,000 इससे कुछ नहीं होता, वक्ती फ़ायदा होता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो वो मैं मुसलसल हमारी जमात कह रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी हैं। आप राइट साइजिंग के नाम पे डाउन साइजिंग कर रहे हैं, नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा नौजवान किधर जाएगा? 119% जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बाहर चला गया। फिर आपका ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो इस पाकिस्तान का फिर क्या मुस्तकबिल हम देख रहे हैं। वो इसलिए कि मायूस हो रहे हैं। आपने कोई रिप्रोडक्टिव चीज़ नहीं बनाई, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाया, आपने प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरियां नहीं दी, तो फिर ये सिस्टम किधर जाएगा? ये इतना इम्बैलेंस्ड हो रहा है सारा कुछ, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये बजट आ गया और कोई एक बैलेंस होगा या फिर हमें कोई आवाम उससे खुश होंगे? हमें तो मायूसी नज़र आ रही है। मैम, आप सीनियर रहनुमा, आपकी सियासी बसारत क्या कहती है कि ये बजट कैसा हो सकता है आवाम के लिए? देखिए, अभी जो बजट में सुन रहे हैं कि और जो फाइनेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ, तो तसलसल के साथ वहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ये टैक्स जो है न बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी तनख्वाह आप देते नहीं हैं जितना टैक्स की मद में लेते हैं, तो फिर कहाँ से ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरा, आप एनर्जी के हवाले से देखें, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जो सोलर सिस्टम लोग अपने लिए एक अपने ख़र्चे पे अपने लिए ख़ुद रिलीफ पैदा कर रहे हैं, कुदरती तौर रिन्यूएबल एनर्जी सन को यूज़ कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब हुकूमत उसमें आके ग्रॉस मीटरिंग कर रही है, नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रही है। तो मतलब ये है कि आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। तो हम तो हमेशा से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। तो फाइनेंस कमेटी भी मैंने टैक्स के हवाले से बात की, एनर्जी के हवाले से भी, बेरोज़गारी के जो है वो मेन आपका ये जो है मजबूरियाँ हैं आवाम की, और हुकूमत पे नज़र है कि हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करें। तो इस चीज़ को देख के तो अगर कोई हुकूमत उसको संजीदा लेती है, कोई रिलीफ देती है, तो फिर तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वही रिवायती होगा, डिफरेंट हेड में पैसे रखे जाएंगे, डेवलपमेंटल के नाम पे रखे जाएंगे, परसेंटेज में तकसीम हो जाएंगे, ग्राउंड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कि एक रिवायत होगी। मौजूदा बजट 2025-26 गुज़श्ता साल की तरह टैक्सों की भरमार होगी या फिर रिलीफ मिलेगा वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी बजट आता है और उसको करते हैं, इस वक्त चूँकि हम हुकूमत के साथ अलाइंस में हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि अवाम की बेहतरी के लिए बजट हो, अवाम जिससे उनको रिलीफ मिल सके, और वो ये है कि कंसेंसस के साथ ही इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी जो बात है वो रख सकें और उसको मनवा भी सकें। अपोजिशन का काम पीपल्स पार्टी ने किया, पिछले साल भी और इस साल भी कर रही है कि अपने मंशूर के मुताबिक PSDP से लेके तमाम टैक्सेस वो अवाम हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट हो। पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी उस टेबल पे लाया जा रहा है हुकूमत को? जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हम अवाम की बेहतरी के लिए करें। अवाम क्योंकि पहले ही बहुत सारी मुश्किलों का शिकार है, कुछ हालात हैं, कुछ हम हमारे जो मुल्की सूरत हाल है उसको
بھی آپ دیکھیں ہم جنگ کے میں سے گزر رہے ہیں ابھی پوری طرح، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاک افواج نے بہت ہمارا سر جو فخر سے بلند بھی کیا اور ہمیں سرخرو بھی کیا ہے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ ان سب چیزوں پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کے مطابق جو ہے حکومت کو ہم دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہمارے عام عوام کے لیے ہو، ہم اسی کو پہ زور دیں گے اور اس کو انشاءاللہ کوششیں منوائیں گے بھی۔ ایم کیو ایم کی سینئر رہنما ہے، آپ کا بھی ظاہر ہے بجٹ میں ایک بنیادی کردار ہے، اس بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہو؟ دیکھیں ایم کیو ایم سے بہت پہلے سے جب سے یہ بجٹ کی پریپریشن شروع ہوتی ہے سال کے شروع میں ہی ایم کیو ایم نے 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ایک جو ہمارا اے ڈی پی پیکج ہے کراچی کا، جو پچھلے سال بھی ہم کو دیا گیا تھا اور پورا ابھی تک اس کے تحت کام شروع نہیں ہو سکے، وہ ایلوکیٹ تو کر ہی دیا گیا تھا مگر کام شروع نہیں ہو سکے، تو ہم نے ایک تو کراچی پیکج کی بات کی ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے، کیونکہ کراچی پچھلے 10 سال میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا انفراسٹرکچر، اس کی واٹر سیوریج کی لائنیں بہت خراب ہو چکی ہیں۔ سیکنڈلی ہم نے کہا تھا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بہت اس پہ بجٹ لگایا گیا تھا، پھر اس میں کچھ کمی بھی کی گئی تھی، تو اس دفعہ ہم نے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے مہنگائی سے وہ درمیانی تنخواہ دار طبقہ ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ جو مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی ٹیکس کو کم کیا جائے، ان کو کچھ ریلیف کیا جائے، اور جو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے۔ میم تینوں چیزیں پی ایس ڈی پی، اس کے علاوہ ٹیکسز اور جو دیگر عوام کا ریلیف ہے، عوامی ریلیف، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، ان سے متعلق تھوڑا سا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ساری چیزیں بڑھ کے اوور آل بجٹ پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کی بھی کچھ شرائطیں، اور ہم آئی ایم ایف میں بھی ہیں، مگر آئی ایم ایف سے ملک کو نکالنے کے لیے کچھ ہم سخت پالیسیز بھی بناتے ہیں، مگر اس میں عوام بہت زیادہ پس رہے ہیں۔ تو یہ جو بجٹ کے سارے معاملات ہیں، چاہے پی ایس ڈی پی ہمارے پروجیکٹس ہوں، چاہے دوسرے معاملات ہوں، اس میں ضروری ہے کہ اس طرح کی پالیسیز بنائی جائے، اور وہ بن سکتی ہیں کہ حکومت کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ جو ایک عام آدمی ہے اس تک ثمرات پہنچے، مہنگائی کم ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں حکومت نے جو ہے وہ جو ہم سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کی تھی، اس میں کچھ % بجلی کے نرخوں میں کمی آئی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ پالیسی دی تھی کہ آپ اس پہ عمل کریں، تو ہم نے صرف جو ہے وہ ان کو سجیسٹ نہیں کیا تھا آپ یہ کریں، ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ سجیسٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے کریں، تو ہم ساتھ ساتھ سجیشنز دے رہے ہیں۔ پھر ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو ہر سال پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ شیڈو بجٹ دیتی ہے، اس میں تمام ریفارمز چاہے لینڈ کی ہوں چاہے اور سروس ریفارمز ہوں، ہر طریقے کی ریفارمز موجود ہیں، تو تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ میم حکومتی دعویٰ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت معاشی اشاریے بہتر ہو چکے ہیں، کراچی کو فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں کراچی کو اس لیے بھی فائدہ ہوگا کہ کراچی میں اوور آل فائدہ ہوتا ہے تو وہ ملک کے جو ٹوٹل جو ٹیکسیشن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کہ کراچی جو ہے وہ اس کو فائدہ ہونا چاہیے تاکہ باقی ملک میں اس پہ ثمرات آ سکیں۔ بتائیے گا کہ یہ بجٹ پچھلے سال کی طرح ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی یا عوام دوست ہوگا، اور ساتھ ہی پی ایس ڈی پی جو ایک بڑا ایشو رہا ہے ظاہر ہے، اس میں بلوچستان کے حوالے سے بھی ظاہر چیز تحفظات ہوں گے، آپ اس میں کیا اس دفعہ کوئی کردار ادا کریں؟ دیکھیے جی، میں گزشتہ 4 سال سے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، تو جب بھی بجٹ آتا ہے تو گورنمنٹ کے حلقوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، اور یہی بات جو اپوزیشن ہے کہتے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ میرے خیال میں بجٹ جب آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان معاشی جو صورت حال ہے پاکستان کی، کہ اس میں ہم یہ توقع کریں کہ کوئی ٹیکسز نئے نہیں لگیں گے یا ٹیکسزوں میں کمی ہوگی، تو میرے خیال میں یہ ہمیں اس چیز کو بھول جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی بلوچستان کے حوالے میں پی ایس ٹی پی بک میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کافی اسکیمات ہوتی ہیں، بہت سی اسکیمات ہوتی ہیں۔ ہم جب ایز اے بلوچستان کے پارلیمنٹیرین میں دیکھتا ہوں تو میرے دل خوش ہو جاتی، مگر جب میں دیکھتا ہوں ان کی ایلوکیشن وہ 5% ایلوکیشن ہوتی ہے، کہ کسی بھی منصوبے کے جو بلوچستان کا ہے اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 20 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران وہ رل جاتا ہے۔ صرف اور صرف عوام کو، بلوچستان کے عوام کو خوش رکھنے کے لیے یہ چیزیں ڈالی جاتی ہے، جس کی میں نے فلور پر بھی بہت دفعہ مذمت کی، مگر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے یہاں پارلیمنٹیرین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے،
तो हमें क्यों देंगे? हमारी जो हैसियत ये है कि फैसलाबाद की जितनी सीटें हैं पूरे बलूचिस्तान की उतनी सीटें हैं, तो वो हमें क्यों खुश करेंगे? तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान के लिए इसमें कोई अच्छा पैकेज हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक शहादत अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी हक में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और तकरीबन अपनी आवाम के हक़ में अपनी मर्ज़ी से मनवाने की कोशिश की बजट को। इस दफ़ा क्या तजावीज़ और किस तरह के तहफ़्फ़ुज़? देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये याद है कि लास्ट टाइम पेंशनर्स के हवाले से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि एटलीस्ट 35% पेंशन बढ़नी चाहिए और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशां थी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा भी आप ये देखेंगे कि हमारा कहना तो ये है कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ़ मिलना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिलना चाहिए, तो बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि पावर सेक्टर में आपने देखा है कि उसमें कमी आई है, फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं, बिजली की प्राइसेस कम आई हैं। इसी तरीके से टैक्स पेयर के टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। मईशत के इशारे जो हैं बेहतर तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। सर, आप भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रहे हैं कि इस गुज़श्ता साल के दौरान मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, तो क्या इसके असरात जो हैं वो समरात आवाम को नहीं मिलने चाहिए कि इस दफ़ा टैक्सेस में कमी हो और रिलीफ दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दोनों बातें करें कि आवाम टैक्स दें भी सही और जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप देखें ना बिल्कुल ही कहीं पे हैं। तो मैं कहता हूँ आवाम को भी आप ये बोलें आवाम टैक्स दें और जिन लोगों के ऊपर टैक्सों की भरमार है उसमें कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये मुतालबा भी रहा है, कोशिश भी रही है और मेरे ख़्याल में हम इस दफ़ा जो है इसमें कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। सर, कमेटी का इजलास भी है कल, बहुत फाइनेंस कमेटी कल बहुत अहम इजलास है जिसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। सर जी, PSDP से रिलेटेड पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के जो कि कुछ हल हुए, काफ़ी हद तक नहीं हो सके, तो जो बुनियादी मकसद था इस दफ़ा भी बात की जा रही है? देखें, डेफिनेटली चंद दिन पहले मेरे ख्याल हमारी क़यादत जो है उन्होंने आपस में दोनों पार्टियों का कुछ रब्ता हुआ है, तो हम तो लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि हमारा जो रिटर्न एग्रीमेंट था वो यही था इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कि जो भी मसले होंगे मशावरत से होंगे। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि आखिर में तो हम बहुत ही तज़ब्ज़ब का शिकार हो गए थे और इस दफ़ा हुकूमत को जो है ना वो हुकूमत अफोर्ड कर सकती है ना हम इस तरह करने देंगे। आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब कुछ न कुछ कदम उठाएंगे और PSDPs जो होंगी वो बराबरी के, मैं समझता हूँ कि लिहाज से हर सूबे को, हर पार्टी को, हर लिहाज से कोई ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और होने भी नहीं चाहिए। मैम, हुकूमती रहनुमा किरण डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बताइएगा कि बजट किस तरह से अवामी होगा और क्या क्या तजावीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वो भी वक्त था जब हम हुकूमत में आए थे तो इस मुल्क के बारे में कहा जा रहा था कि ये दिवालिया हो रहा है। आज आप देख लें, फिगर्स आपके सामने हैं, हम टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि दूध और शहद की नहरें बन रही है, लेकिन रिलीफ मिला। अगर मैं रमज़ान की बात करूँ जो अभी रिसेंटली बड़ी ईद आने वाली है, बड़ी तो इसमें थोड़ा सा ही फासला होता है, तो याद होगा कि इस दफ़ा चीनी की लाइनें नहीं लगी, इस दफ़ा धक्कम पेल नहीं हुई, इस दफ़ा कोई ऐसी कतार नहीं लगी जिसके अंदर किसी की जान गई हो, तो आपने देखा। और अगर मैं रेट्स की बात करूं तो वो भी आपके सामने थे। मैंने बहुत अरसे के बाद ये देखा कि रमज़ान में वो जो केले या मैं सेब की बात करूँ जिसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं, वो सेब जो अगर 200 रुपया किलो थे और ऐसा नहीं हुआ कि वो रमज़ान में 300, 350, 400 या 600 रुपये वो उसी रेट पर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुकूमत की थी जो उसने रिलीफ रमज़ान में दिया। और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में भी जिस हद तक तनख्वाहदार तबके की बहुत बात हो रही है, अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबके के पास तनख्वाह बाद नहीं आती, उसका टैक्स पहले कर देता है। और अगर मैं बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूँ तो वो उनकी शशके बचके बड़े हैं लेकिन वो नहीं देते, टैक्स नहीं देते, तो उनको टैक्स नेक्ट में लाने की ज़रूर, मैं ये ज़रूर बात कर सकती हूँ कि उनको टैक्स नेक्ट में लाने की कोशिश की जा रही है और ये तनख्वाहदार के ऊपर जो टैक्स का बहुत बड़ा बोझ है उसको रिलीफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इस मैम, आपने भी फरमाया कि मुआशी अशारिये ग्राउंड पे बेहतर नज़र आ रहे हैं पिछले साल की निस्बत, उसी बुनियाद पर अभी कितनी बेहतरी आएगी इस बजट में आवाम की? देखें, 2 जून बहुत दूर नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेक्स्ट मंडे
ये कमिंग मंडे और नेक्स्ट मंडे है, तो रिलीफ इंशाल्लाह ताला देखिए हुकूमत क्या करती है, हम हुकूमत रिलीफ देने के लिए आती है। एक वो हुकूमत थी जो कहती थी कहता था कि मैं आलू और टमाटर के जो है ना रेट के लिए नहीं आया, मैं ये कह रही हूँ कि ये हुकूमत जो है वो आलू टमाटर के रेट के लिए भी आई है, और इंशाल्लाह ताला आप 2 जून को देखेंगे कि हम ग्रेजुअली रिलीफ की तरफ जाएंगे। जमाल रईसानी साहब, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता साल भी रेजिस्ट किया था और इंसिस्ट भी किया था कि बजट जो है वो अवामी होना चाहिए, जैसे कि पार्टी का मंशूर भी है, चीज़ें भी हैं। इस दफ़ा क्या लाया अमल है और किस हद तक जो है वो अवामी हो सकती है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वक्त एक मौक़िफ़ रहा है कि बजट जो हो वो आवाम दोस्त हो, और सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आवाम को रिलीफ मिले। और जहाँ तक बात बजट की होती है तो एक कोलिशन गवर्नमेंट के तहत हर वक्त इस पे जो आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी इनपुट लाजमी है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है, अभी भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उनके साथ शुरू है, लेकिन एक और फैक्टर जो अफेक्ट करती है वो IMF है। तो IMF का जो जितने भी सजेशंस हैं उनको भी हमें ऑन बोर्ड लेना होगा। सर, हुकूमत का दावा है कि पिछले साल की निस्बत मुआशी अशारिये बेहतर हो गए हैं, तो क्या सियासी बसीरत कहती है कि मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं तो ये अवाम दोस्त बजट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा पहले? देखिए जी, बेहतर हुआ है, जहाँ पे क्रेडिट होती है तो देना चाहिए, जहाँ पे बेहतरी आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करनी होगी। और GDP के हिसाब से आपके सामने है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। महंगाई कोशिश ये है कि कम हो आवाम के लिए, लेकिन अभी फिर देखा जाएगा कि आया जो बजट पेश किया जाएगा ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर असर रखेगा या लॉन्ग टर्म के ऊपर। और हमारा जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का ये है कि लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदे मिलने चाहिए, ना कि सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए। सर, बात सिंध की हो या बलूचिस्तान की, PSDP इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस हवाले से पिछले साल भी कुछ इशूज़ रहे, इस साल क्या वो हल होने जा रहे हैं? देखिए जी, हमारा PSDP में बलूचिस्तान का हर वक्त एक मौक़िफ़ रहा है कि हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, जैसे कि KP को पंजाब को मिलता है हमें भी दें, ठीक है ना जी। और बेशक हमसे ना लें, आप ख़ुद जाके इनिशिएट करें। कराची कोयटा रोड हो गया, वो 3-4 वज़ीर आज़म आए, उन्होंने दुआएं की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इसी तरह आजकल कहा जा रहा है कि डीज़ल के ऊपर हम टैक्सेस बढ़ाएंगे ताकि हम जो है बलूचिस्तान को रोड बना, मतलब आया हम यहाँ पे भिखारी हैं, तो हमें हमारा पूरा शेयर मिलनी चाहिए, ख्वाह सिंध हो या बलूचिस्तान। बताइएगा कि बजट जो है आपके ख्याल में मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं, हुकूमत कहती है चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं, इस दफ़ा पहले की निस्बत कितना बजट बेहतर हो? ज़रूर सोशो इकनॉमिक स्टेटस जो है वो हमारा इम्प्रूव किया है, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइन तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल हम एक चीज़ अपने जहन में हमने फिर भी रखनी है कि IMF के कर्ज़ों का बोझ अभी भी हम उसके नीचे दबे पड़े हैं, और उसके साथ जो हमारे उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमें पूरा भी करना पड़ेगा इस बजट में भी। हाँ, हम अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है और उनके जो हमारे ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको दूर भी किया है, जिसकी वजह से हमें बड़े बेहतर असरात भी आपको कुछ चीज़ों में नज़र आए। लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि देखें, जब तक अल्लाह ताला करे कि हम सुरखरू जैसे हर मैदान में हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दुश्मनों के हाथों भी सुरखरू हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे पहले की निस्बत बहुत बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में होगा, सब्सिडीज़ का इशू रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देने के लिए बेहद कोशिश की जाएगी। वो चीज़ें जो गरीब इंसान के लिए हैं उनके ऊपर कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है कि उसको कुछ बेहतर हो। हाँ, ऑब्वियसली कुछ पेट्रोल और डीज़ल की जो लेवीज़ हैं उसके बारे में नहीं कह सकते। देखें, ये चीज़ें तो अब जो IMF जिस तरीके से कहेगा, लेकिन एक आम आदमी की जो है तनख्वाह के इनकम टैक्स पे इन चीज़ों पे नज़रसानी जो है हो रही है, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी नज़र आएगी। हम बताइएगा कि पिछले बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर साथ दिया, उसके बाद ही बजट जो है वो पास हो सका। इस दफ़ा भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर बजट नहीं पास हो सकता। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, PSDP और दीगर जो है, क्या आप समझती हैं इस बजट में आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की, आवाम की सियासत की, आवाम के हकूक़ की सियासत की। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि हमने जो PSDP में
दीगर छोटे सूबों को नज़रअंदाज किया गया था, ख़ास तौर पे सूबे सिंध, बलूचिस्तान, NKP, उसको जो है पॉइंट आउट भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी यकीन दहानी भी कराई और कुछ रिलीफ भी मिला छोटे सूबों को। इस मरतबा भी अभी चेयरमैन साहब, चूँकि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ख़राब है, मुल्क की सलामती को जो ख़तरात दरपेश हैं उसके पेश नज़र पीपल्स पार्टी इस मौके पे कोई इस तरह के, मैं समझती हूँ कि मुतालबात गैर ज़रूरी तो नहीं कर सकती मुल्क के दिफा को सामने रखते हुए, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक रहा अवामी मफादात तो उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन की चेयरमैन ब्राउज़ भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में मुलाकात भी हुई और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल करने को भी कहा। मैम, पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान से ही शुरू होने वाला ज़ाहिर है सारी मंशूर ही ऐसा है कि जिसमें अवाम और अवामी फलाह से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ तजावीज़ या जो है वो देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़दूरों की, लेबर्स की, मुलाज़मत पेशा जो हमारे मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे की बात की। इसी तरीके से देखा कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी के हवाले से भी मुज़ाकरात हुए और उसमें जो है हमें मस्बत नताइज मिले। और ना सिर्फ ये बल्कि रोटी कपड़ा मकान की जहाँ तक बात है तो इस वक्त सूबे सिंध के अंदर जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पीपल्स पार्टी ने 21 लाख मकानात को जो बनाने का वादा किया था उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख घर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था उसको पूरा करें और उस सिलसिले में वहाँ पर फंडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो अब देखें कि उसमें मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होगी। बताइएगा कि बजट के हवाले से जो आइंदा बजट 2025-26 आ रहा है ये आवाम के लिए कैसा हो सकता है और इसको कैसा होना चाहिए? देखिए जी, अभी जो हमारी नई हुकूमत बनी है पीपल पार्टी और मुख्तलिफ हमारे इलाइज जमातें और नून लीग की, हमारा मुल्क बहुत पीछे था और मुआशी बहरान भी था, महंगाई भी थी। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला ए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ अभी भारत की जंग हुई भी तो उसके हमें कामयाबी हासिल हुई। इस दफ़ा की जो हिकमत अमली है अवाम के लिए इंशाल्लाह इस बजट में खसूसी पैकेज आ रहा है, सरकारी एहलकारों के लिए खसूसी पैकेज आ रहा है। इंशाल्लाह ताला अवाम इस बजट को अपने लिए बेहतर तस्वर करेगी इंशाल्लाह। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा कि ये आइंदा बजट 2025-26 जो है ये कैसा हो सकता है और इसे कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो देखें जी, ये जो 2025-26 बजट आया है, पाकिस्तान अभी अपने जो पिछले मसाइल थे उनसे निकल कर टेक ओवर करने जा रहा है, जिसे उड़ान पाकिस्तान कहते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और मुझे यकीन है कि जिस विजन और सोच के साथ उनकी टीम काम कर रही है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत अच्छा बजट होगा। सर, आप हुकूमती पार्टी के और हुकूमत के भी अहम रुकन हैं। सर, चंद ऐसे चीज़ें बताइएगा जो आवाम के लिए तसल्ली बख्श हों कि क्या क्या इकदाम आवाम के लिए खुसूसी इस बजट में उठाने। देखें जी, बजट से पहले जो बजट आ चुका है, बिजली सस्ती हुई है, मामलात बेहतर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो गया है, जो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है ये आवाम के लिए है और आवाम को जो रिलीफ मिलने हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। सर, मुलाजमीन के लिए भी आप समझ रहे हैं? देखें जी, मुलाजमीन हमारा हिस्सा है, क्यों नहीं मुलाजमीन के लिए भी बेहतर सोचें। सर, अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। सालाना बजट 2025-26 के लिए तैयारियाँ जारी हैं। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से कि इस साल भी हुकूमत गुज़श्ता साल की तरह आवाम पर महंगाई और टैक्सों का बोझ लादने जा रही है या मुआशी अशारिये बेहतर होने की बुनियाद पर इस साल आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से जानते हैं कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमत को किस तरह का बजट पेश करने पर मजबूर करेंगी, तजावीज़ देंगी या किस तरह का बजट जो है वो मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए पेश किया जा सकेगा। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से।